Hello everyone. Today I am going to discuss some properties of definite integral and solve some PYQs of previous year question of CBSE board for 4 to 5 using some of those properties, and rest of the properties I will discuss in a separate video that I will be releasing uploading tomorrow at the same time. Okay, tomorrow I will be uploading, but that time might be differ by some hours, but I will upload confirm the rest of the application that I'm not uploading today, and I will try to cover most questions that are asked in the recent years like 2023, 2022, 21, and 20, up till 2015, 12, all the definite integral question. So using those properties only as I am discussing today. So first of all I have to connect my device, otherwise I cannot proceed further. So let's connect it. One second, give me a second please. Yeah, so I have connected it. So you can see that these are the fundamental properties. If we use method of substitution, sorry, if we use method of substitution, I'm extremely sorry. Yeah, now it's selected. Yeah. Mm, yeah, sorry. So now, if we use these are the fundamental properties of a definite integral or integration, and we can see that if we change the variable by using the method of substitution, then the limits, that is the upper and lower limits, upper and lower boundaries will not change. They will remain fixed or constant or unchanged. They will not be changed. Okay, this is the first property. So suppose we are given with an integral like this, that uh, um, d- dx, and above we have x dx, and in the denominator we are having like this something x square. So if we consider x square equal to z, if we consider like this, I'm not, you can easily solve it by cutting like this x and x dx, where there is log mod, mod x plus c. But instead of this, if I do like this, that we substitute z in place of x square equal to z, then we can see that it will become twice x dx equal to dz by method of substitution, and xz dx equal to dz by 2. So like this. So if we do like this here, so 1 by x, so dx by x, so dz by twice. So what you can write here, x dx is there, so dz by twice, and dz by, and here it will twice z, and integrate here, so half of what you can write, log mod z plus c, and z will substitute as x square. See, you can see x square equal to z, so z you can substitute x square, so half log mod x square, and by property we know that plus c. Okay, and by properties of logarithm we know that this power of that exponent, this is a base is e. Okay, you can assume, but it is given, and it will be multiplied, base will be multiplied with the log, and sorry, exponent, the power of the exponential part. So power of this base, this part is base and this is exponent, and that the power of it will be multiplied here. So 2, so half and 2 cancel, so log x plus c. So ultimately we get this. So but if the limits are here, suppose upper limit is b and lower limit is a, and here also upper limit will be b and a, after substitution also they will not change. So that is the first property. And mantis is also there, mantissa in a logarithm and exponent, that I can explain when I will discuss the logarithm chapter. So now you have the second property, like that if you are going to change the limit, upper and lower limit, interchange them, swap them basically. If we are swapping or just interchanging the upper and lower limits, then the integral we have to be multiplied.
by a negative sign. Okay, like um, we are having something like this. So I can show you side here. Sorry, yeah. So if something is there, sin x dx, and the lower limit is 0 to pi by 2. So you can write it as like this, that pi by 2 to 0, okay, minus of sin x dx. Okay, so that's the point, minus of sin x dx. Okay, so that is the thing. Why it is done? When you integrate something, you can imagine only that it is the value after integration, okay, and you put the limit, okay, the result after integration, you put the limit upper and lower, ib minus ia, okay, this is the actual, and it will be equal to minus of ia minus ib. If you multiply by minus, the if you change the limit, no effect will be there, the values will remain same. So this is the second property. And if we now go to the third property, we can see that we can change the limit. It is split, instead of change we write here split the limits. That is, I'm adding a page and so, yeah. So if there is a function like this, like I can show you like mod of x. I can imagine mod of x dx. Okay, and we have to integrate this function from minus 2 to 1 plus 1. Okay, minus 2 to plus 1. So we know that it is a absolute value function, and its definition is like something like this. It is equals to x, positive of x, when x is greater than equals to 0, and of minus x when x is less than 0. Okay, we can also write it like three things. Let mod x equals to some authors like different like this also. X when x is greater than 0, 0 at x equals to 0, and a minus x at x is less than 0. Now we can see that minus 2 to 1 we have to integrate. We have to, sorry, I'm using it and writing it once again. So because it does not appear to the with the integrating sign symbol for me. Yeah. Uh, Again some mistake I made. I'm extremely sorry. I'll update this symbol very soon. So if this is an integration symbol, minus 2 again, na? 2 1, minus 2 to 1, then we can draw the graph, or without the graph also you can see that it will be breaking at point 0. Okay, because it is defined as 0, and its definition or behavior changes from 0 only. And if we see at the graph, it is a v-shaped graph of mod x, okay, v-shape, and this is the point 0. Okay, and its behavior changes. At greater than 0 it will be increasing with x, and less than 0 it will going down. Okay, so this thing. So now we can see that we have to break it because its behavior changes, right? Nature is not same. Okay, if it is a constant function, then we cannot say like, because this behavior is constant, if behavior is changing. Similarly to sin x, we can see if you want to integrate sin x, and it behavior is changing at this point 0, it is pi by 2, and this is pi, this is 2 pi. Okay, so it is periodic. Sin x is periodic with period 2 pi, right? Because it is repeating after this. Okay, the sin x graph is like this. So we know this is the basic trigonometric function. This is minus pi, this is minus 2 pi, and so on and so forth. So this is a sin x graph, and its definition changes as pi. So in this case, I am first of all discussing that if mod x is like this, then first of all minus 2 to 0, okay, mod x will be equals to minus x dx plus, so here we have to split the limits, okay, break the limits, anything we can say, okay, change them, okay, because this c is 0 here, c is 0 here, basically c is lying between a and b, strictly greater than a and strictly less than b, strictly, okay, the word will appear strictly, not
just you cannot say what you cannot say that we cannot say that less than, greater than, like this. What is not allowed strictly means it will not be equals to, will never come in this case. Greater than equals to, less than equals to. So two types of increasing and decreasing is there, strictly and monotonically, something like that. Okay, so these are the important things strictly. Now uh, -2 to 0. Okay, and from after that 0 to 1, and here mod x will be equals to x dx. So this is basically a piecewise function. Mod x, other piecewise function are box of x, the greatest integer function, or the ceiling function we can say. There is another function fraction x that is equals to x minus box x, and there is another function that is piecewise, actually not a simple function, a piecewise function signum x that is equals to x by mod x, x by mod x. Okay, and it will be equals to signum x will be equals to 1 when x is greater than 0, minus 1 x is less than 0, and at x equal to 0, 0 by 0 is undefined, but we know that at x equal to 0 mod x equals to x, so you can say 1. But how do you can see that at 0 some this thing will be there. Okay, continuity differentiability chapter we will study this behavior of signum function, that some cusp, not cusp, basically sharp corner cusp, that kind of things are there in continuity differentiability chapter. So these are the basics of mod x dx, and we'll integrate it in this, and we'll x square, and upper limit and lower limit we'll put here. What are the upper and lower limits? So -2 to 0, and -2 square is 4, and basically -4 will be there because 0 minus of 4, so -4 plus x dx. So x dx and 0 to 1, so again x square, so plus 1, so -3 will be the answer here. Okay, so these are the basic things. You can do in another way like that. You can see that in case of modulus, a shortcut is there for JE, that we have to draw the graph. Okay, an area of bounded region will apply over here. So -2 to 1. So we can see that if it is -2, and then -1 is there. Okay, -2 corresponding, what will be the value of y here? We can see it will be +2, and here it will be 1. Okay, and this also will be 1, this part. So this part is half into 2 into 2, so area of this. Okay, and area of this, half into 2, so -2 to 1 is there, so 2 to cancel, and this 2, and this part, area I'm talking about, you can take it out like that also. 2 into 2 4. Yeah, sorry, I'm extremely sorry. So enter area of this, and this will be a negative area, and this will be the positive area. So enter, not a triangle, the inter portion, the inter region. Okay, so negative and positive. This one is area of this square, that is 1 plus 1, and here will be -2, and this is 2, but that will be -4, negative area, a square. So my 2 square is 4, but it will be negative this one, and this one is positive, +1, so -3 again. So this is a shortcut to find out the area of, like मतलब क्या बोल सकते हो आप, those kind of. We can also try integrating x minus mod x from the limit -2 to -2 to +3. Okay, dx. So this also you can try at home. And again for sin x I am talking here, sin x. So if you want to integrate this sin x, and I have given you the limits from 0 to
suppose this thing 3 pi by 2, okay, that is strictly less than pi 2 pi. If we draw the graph of not a graph but periodicity, और क्या बोल सकते हो उसको आप, कि एंगल चेंज का जो वैल्यू होता है ना, कि इधर से 0 से स्टार्ट होता है, इधर पाई बाई 2, बिहेवियर जो होता है उसको अगर आप ड्रॉ करना चाहिए, इधर पाई होता है, इधर 3 पाई बाई 2 होता है, तो आप देखोगे फिर इधर से 2 पाई हो जाता है इधर पे आके, फिर इधर 4 पाई होगा, इधर पे क्या होगा, 2 पाई हो गया, 2 पाई हो गया, तो इधर 5 पाई बाई 2 होगा, ठीक है। तो 5 पाई बाई 2 से ज्यादा क्या हो सकता है, प्लस पाई बाई 2 जोड़ देते हैं इसमें, तो 3 पाई हो जाएगा इधर पे, तो 1357, तो 24 ऐसे ही। तो आप यह बोलते हैं कि 3 पाई, जैसे ही पाई आएगा, मतलब ये पाई, मतलब पाई पे आएगा तो चेंज होएगा, तो आप देख सकते हो, या फिर से क्या कहाँ पे चेंज होएगा, तो पाई के बाद यहाँ पे ऑड पे चेंज होएगा, तो ऑड, ऑड जो है तो 1 है, तो पाई पे एक बार चेंज होता है, 2 पाई पे भी चेंज होता है, फिर मतलब ऑड इवन जब जब पाई के ऊपर रहते जाएगा मतलब वो चेंज होते जाएगा, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। 3 पाई बाई 2 रह गया, 3 पाई बाई 2 रह गया इधर पे, तो साइन एक्स जी एक्स और लिखे रह गया, तो आप अगर पाई बाई 2 रहे तो कोई दिक्कत नहीं, अब सीधा इंटीग्रेट मार दो, लेकिन अगर 3 पाई बाई 2 रही है तो आपको 0 से पाई तक लेना पड़ेगा साइन एक्स, ठीक है, dx, ये एक हो गया। तो दूसरा होगा, मतलब अब क्योंकि बिहेवियर चेंज होता है इधर पे जाके, तो अब पाई 0 से पाई तक एक बिहेवियर है, अब पाई से 3 पाई बाई 2 तक दूसरा दूसरा मतलब बिहेवियर दिखाया गया है, साइन एक्स डी एक्स ऐसा लिखे दो। तो अब देख सकते हैं कि 0 से पाई तक ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही पाई के ऊपर चला जाता है, यानी कि अब क्या हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट पे आ गया। अब थर्ड क्वाड्रेंट पे जब आ गया बच्चों, तब क्या होने वाला है, आप सब समझ सकते हो कि ऑल साइन टेन कॉस, तो यहाँ पे साइन क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, मोस्ट प्रोबेबली नहीं, इधर पे साइन हो जाता है नेगेटिव, तो इधर पे माइनस साइन एक्स बिठा देते हैं। अगर इधर 3 की जगह 5 रहती, तो अब कहाँ कहाँ ब्रेक करते इसको, एक तो 0 से पाई तक एक गया, अब पाई से 2 पाई तक दूसरा गया, अब 2 पाई से लेके तक, अब देखिए ना 2 पाई से लेके 5 पाई बाई 2 तक आपको इंटीग्रेट 3 बार इसको स्प्लिट करना पड़ता, ऐसा नहीं कि एक बार स्प्लिट हो सकता है, 1000 बार स्प्लिट हो सकता है, ठीक है, ऐसे कि, लेकिन एक ही कंडीशन होना चाहिए, जो कांस्टेंट होगा तो क्या होना चाहिए, ए और बी के बीच में होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ कि C1 एक कांस्टेंट दूसरा कांस्टेंट आ गया, तो क्या होगा, होगा C से कम, और C लेस देन बी तो है ही, तो C1 से क्या होगा, ए ऐसे आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, C1 C2 C3 कुछ भी हो सकता है, एनी नंबर ऑफ कांस्टेंट यू कैन ब्रिंग एंड इंटीग्रेट, ए से C1 के बीच, C1 से C के बीच, फिर C से B के बीच, तो ऐसे ऐसे स्प्लिट करते हैं हम, ऐसे ऐसे हम डिवाइड करेंगे, इसके इसके बीच में हम इंटीग्रेट करते जाएंगे, तो ये हो गया रूल। तो आप इसका भी एरिया आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसका भी शॉर्टकट होता है, इसका भी, ये सेमी सर्कल आप मान सकते हो, हम ऐसा नहीं बोल रहे आप मानो ही, ठीक है, इसका वैल्यू होता है 1, इसका वैल्यू होता है, क्या होता है इसका वैल्यू आप बताइए, ये पाई होता है, तो हम बता सकते सेमी सर्कल है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो आप रेडियस मान सकते हो, इधर पे 1 है और पाई है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई होगा, ठीक है, बाई 2 होगा, क्यों, क्योंकि ये जो देख रहे हो आप, ये पाई बाई 2 पे आती है, पहला बात, तो पाई बाई 2 इंटू 1 भी ऐसा बोल सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर बाई 2, सो पाई बाई 2, ओके, तो ऐसा कुछ होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2, ऐसा मान सकते हैं, लेकिन ऐसा ना करना ही सही है, यू हैव टू फॉलो द ट्रेडिशनल अप्रोच। शॉर्टकट्स ऐसे आप लगा सकते हो कि पाई आर स्क्वायर बाई 2 एक हो गया सेमी सर्कल का, इधर पे रेडियस कितना हो रही है, तो आपको रेडियस 0 से इधर से 1 यूनिट है तो 1 बिठा सकते हो, ठीक है, साथ में ये वैल्यू पाई बाई 2 पे हो रही है और ये 1 पे हो रही है, मतलब दोनों का प्रोडक्ट भी ले सकते हो, मतलब ए इंटू बी ऐसा कुछ करके, मतलब ऐसे अप्रोक्सीमेट करके ले सकते हो, लेकिन मत लेना सही नहीं है, ये सब बाद में देखा जाएगा, क्योंकि ये एरिया के, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजियस के पोर्शन में आता है, उसके पहले हम सबको बेसिक्स भी जानना पड़ेगा, कि सपोज आपके पास एक कर्व है, अब सबको पता ही होगा जो यही पढ़ रहे हैं से, log x का जो कर्व होता है वैसा होता है, ठीक है, मतलब एसिम्प्टोट्स हो जाते हैं, मतलब जो ये लाइन होता है ना, वाई एक्सिस इधर x इक्वल टू 0,
इसको बोलते हैं y इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसका इसका एरिया का वैल्यू एक रहता है स्टैंडर्ड कुछ मेरे को याद नहीं है कि, या फिर के इक्वल्स टू 1 वगैरह कुछ तो एक था, मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप खुद से आप करके देखोगे तो आपको याद रह जाएंगे। तो रिजल्ट जब मैं एरिया बाउंडेड रीजन्स मतलब डिस्कस करूंगा तो आप सबको मालूम हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट पेज पे प्रीवियस पेज पे पहले चलते हैं। ये तो हो गया आपका स्प्लिट या फिर ब्रेक द लिमिट्स का प्रॉपर्टी, तो कुछ भी हो सकता है। तो अब जाते हैं यहाँ पे, यह है और बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट। तो देख सकते हो कि एक प्रॉपर्टी बताई इंटीग्रेशन का कि अपर लिमिट लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट तक अगर एक एक फंक्शन को आप इंटीग्रेट करते हो तो वो क्या होता है, लिमिट का सम, मतलब क्या बोलते हैं, हाँ दोनों लिमिट्स का सम फंक्शन, मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस बी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट या फिर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, सेम थिंग। क्योंकि कम्यूटेटिव होता है एडिशन, एडिशन क्या होता है कम्यूटेटिव, एडिशन ऑफ टू वेरिएबल्स ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, कुछ भी लिख सकते हो, बी प्लस ए मतलब ए प्लस बी माइनस ऑफ एक्स डी एक्स। तो अगर इनमें से एक लिमिट जीरो हो जाए, कोई भी एक जीरो हो जाए, अगर मैं लोअर ही मानता हूँ जीरो, क्यों अपर तो जीरो होगा नहीं, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड नोटेशन। तो इधर पे देखो, इधर पे बी को रिप्लेस कर दो ऐसे, इधर बी भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। इधर पे अगर बी रहते रखते तो क्या होता है, ये बी माइनस एक्स हो जाता। लेकिन स्टैंडर्ड ए कम्स बिफोर बी ना, मतलब क्या बोलते हैं अल्फाबेटिकली ए बी सी डी ऐसे करके जेड तक जाता है, इसलिए ए को पहले रखा इधर पे, क्योंकि एक को जीरो मान ले, कोई एक भी जीरो चलेगा। तो बी को ए से रिप्लेस कर दिया, तो एफ ऑफ ए माइनस एक्स। तो सेम इधर पे एक को जीरो बिठा दो कोई एक को, लेकिन इधर पे बी नहीं है ना, इसमें इसमें बी नहीं है, देखो जो स्टैंडर्ड ओरिजिनल फॉर्मूला है। तो इसमें आप ए को रखो फिक्स, बी को जीरो पुट कर दो, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स। तो ये हो गया फोर्थ फॉर्मूला का दो रिजल्ट। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, फॉर एज सिंपल एज दैट सीबीएसई में मिलेंगे, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम में भी मिलेंगे। तो अब आते हम अपना बाकी तीन ऑफ रिमेनिंग फॉर्मूलाज पे। सबसे पहले मैं ये डिस्कस कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए एन ऑफ ए जीरो एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एन, एन बाहर एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम द लिमिट जीरो टू एन इक्वल्स टू एन। मतलब क्या बोल सकते हो कि जो ए अगर पीरियड है फंक्शन का, पीरियड ऑफ द फंक्शन इज ए, इज नथिंग बट द पीरियड ऑफ एफ एक्स। ओके, इसीलिए क्या बोल सकते हो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एक्स। अगर ऐसा है, if this is happening, the is the period of the function of x, then we can take out n from here. So वही हम लोगों ने किया है, इन लोगों ने किया है by the standard rule and convention। और एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन लगाओ, जीरो टू ए लगाओ, n को बाहर खींच लो, बस खत्म। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसको दिमाग में रखियो और स्टार मार्क लगा दियो। इससे जेई का कुछ क्वेश्चन आपको पक्का मिलेंगे, मतलब आप सॉल्व कर पाएंगे इसको यूज करके। अब सेवेंथ प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हो, इसको हम थोड़ा बाद में करेंगे। हाँ, सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर एक फंक्शन ऑड फंक्शन है, क्या है ऑड फंक्शन, तो क्या बता सकते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। इन दैट केस एफ ऑफ ए टू, मतलब क्या बोल सकते हैं, सॉरी एफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम द लिमिट्स माइनस ए टू ए इक्वल्स टू जीरो। अगर ये इवन होता है एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स इवन होता है, तब इन दैट केस हम क्या बोल सकते हैं कि टू से मल्टीप्लाई करो, नीचे को जीरो कर दो, ऊपर ए एज इट इज रहने दो, या जीरो कर दो, ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दो। ये अब क्यों हो रहा है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। माइनस ए से माइनस माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू मान सकते हो, इधर माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। अगर ये cos x होता, ये अगर cos x होता, तो इन दैट केस आप क्या लिख सकते थे, ट्वाइस ऑफ cos x का इंटीग्रेशन लिख सकते थे फ्रॉम द लिमिट्स जीरो टू ए। तो माइनस ए को रिप्लेस कर देते, क्यों करते हैं माइनस ए को रिप्लेस, ये कोई भी पूछेगा। और इधर पे जीरो क्यों पुट कर देते अगर ऑड फंक्शन हो सकता है, ऑड कौन से फंक्शन है, साइन एक्स एक ऑड फंक्शन है, क्यों, क्योंकि माइनस मतलब एक्स को अगर रिप्लेस करोगे माइनस एक्स से, ठीक है, तब क्या होगा साइन एक्स का जो मतलब वैल्यू हो जाएगा वो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। अब आप मान सकते हो ऐसा क्यों है, साइन एक्स का ग्राफ से भी आप ऐसा इन्फर कर सकते हो क्या, ऐसा तो ग्राफिकली भी बता रहा है साइन ऑफ माइनस पाई, तो आपका जीरो ऐसे ही है, लेकिन साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू वो तो आपका माइनस वन हो जाता है। तो
यह भी एक बात है। तो ठीक है, अगर मतलब साइन एक्स नहीं, अब कोई भी एल्जेब्रिक भी चला जाओ ना, एक्स एस क्यूब होता है, ये ऑड फंक्शन होता है। क्यों? क्योंकि एक्स को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस करो तो माइनस एक्स क्यूब आएगा। एक्स स्क्वायर चले जाओ, लेकिन ये क्या है, ये आपका इवन फंक्शन होता है। क्यों? क्योंकि एक्स एक्स को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस भी करो तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, क्योंकि माइनस वन स्क्वायर वन होता है। तो अब अगर आप जाते हैं इसी बार साइन स्क्वायर एक्स पे, तो वो भी एक इवन फंक्शन है, तो इन दैट केस आपका ये एप्लीकेबल होगा। तब ये डेरिवेशन कैसे आ रहा है, ये मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ। कहाँ गया, सॉरी। हाँ, तो हाँ, तो देखिए, तो इधर पे क्या लिखा हुआ था, इधर पे लिखा हुआ था माइनस ए से लेके एक तक कोई भी फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स। तो आपको पता है कि जीरो पे आपका मतलब कोई भी फंक्शन का क्या बोल सकते हैं, ये माइनस से और ए के बीच में होता है, और माइनस से प्लस से भी क्या होता है, जीरो, दोनों का ऐड कर जीरो। तो इधर पे ऐसे ब्रेक करेगा अगर जीरो एफ एक्स डी एक्स। और ऑड और इवन फंक्शन क्या होता है पता है, कि ऑड अगर होता है माइनस को एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब क्या बोल सकते हो कि माइनस जीरो ना, जीरो ही स्ट्रिक्टली उसको डिफाइन करेगा कि जीरो से अगर राइट का हुआ तो ये पॉजिटिव होता है, जीरो के लेफ्ट में जो जो नंबर्स हो तो सारे निगेटिव होता है, रियल नंबर जो क्या होता है, इसका मतलब क्या बोलते हैं, मल्टीपल इन्फिनाइट नंबर, इन्फिनाइटजिमल बोल सकते हैं। तो अब देखो, तो माइनस ऐसे जीरो, जैसे स्प्लिट प्रॉपर्टी को यूज करके, स्प्लिट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्प्लिट प्रॉपर्टी, इसको हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी। तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। स्प्लिट प्रॉपर्टी को यूज करके क्या कर सकते हैं कि माइनस ए से जीरो, फिर क्या लिख सकते हैं, जीरो से ए, एफ एक्स डी एक्स। अब एक चालाकी कर लगाते हैं हम बोले थे ना, पहले ही बोले थे कि अगर माइनस ए से जीरो कोई लिमिट रहता है, इसका मतलब क्या, लिमिट अगर आप इंटरचेंज करना चाहते हो तो माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो वही हम करेंगे इस बार। तो इस बार हम कर रहे हैं कि माइनस लगा देते हैं, जीरो से माइनस से लगा देते हैं, एफ एक्स डी एक्स लगा देते हैं, प्लस जीरो से एफ एक्स डी एक्स। अब एक चीज आप गौर करो, इधर पे गौर करने वाली एक ही बात है, इधर पे जो आपका ऑर्डर फंक्शन होगा, क्या होगा, ऑर्डर फंक्शन। इन दैट केस आपका जीरो से सही है, लेकिन माइनस से जीरो, मतलब ये रेंज पे, ठीक है, ये रेंज पे क्या हो जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो से लेके माइनस ए एफ एक्स लिख सकते हैं हम इधर पे, एफ एक्स डी एक्स, माइनस माइनस चला गया। अब इधर तो पॉजिटिव ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, राइट। तो इस बार देखो, अब इसको इंटीग्रेटर का आई अगर वैल्यू आए, तो आई का माइनस है, आई का माइनस है, रहते हैं माइनस है, कोई दिक्कत नहीं, रहने देते हैं, माइनस ऑफ आई ऑफ ए प्लस, प्लस क्या, आई ऑफ ए माइनस आई ऑफ जीरो, सॉरी माइनस ऑफ आई, क्या लिखे, आई ऑफ माइनस से माइनस ऑफ आई ऑफ जीरो, सॉरी ये जीरो है, ठीक है, ये भी जीरो है, गलती से कुछ बोल दिया होगा। तो माइनस आई जीरो, सॉरी, हाँ हाँ, एक माइनस साइन भी था ना, हाँ, एक माइनस साइन भी था। हम्म, अगर इवन फंक्शन हुआ तो नेगेटिव में भी पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं, हाँ वरना ये ऐसा होगा, माइनस आई ऑफ जीरो। तो अब आप समझ सकते हो कि ये कैंसिल आउट कैसे होंगे, ठीक है, ये ऐसे ही कैंसिल आउट नहीं होते। मैं कोई गलती कर रहा हूँ शायद डिराइवेशन में, आई एम फेसिंग सम मिस्टेक। माइनस ए से ए तक एफ एक्स डी एक्स, माइनस ए से जीरो, परफेक्ट। तो एफ ऑफ एक्स को अब अगर रिप्लेस करें माइनस एक्स से, एक्स को रिप्लेस कर माइनस एक्स से, तो इधर पे एक्स नेगेटिव है, इधर पे नेगेटिव है, तो माइनस अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे।
माइनस से हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है सॉरी, इधर से माइनस से मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। तो अगर एक इंटीग्रेशन का कोई एक वैल्यू इसका आ जाता है तो आई जीरो, ये प्लस रहेगा, आई ऑफ जीरो ही रहेगा, ये माइनस ऑफ आई है, और ये माइनस ऑफ आई जीरो। तो आई जीरो माइनस आई जीरो कट जाएगा, तो सेम है, आई ऑफ जीरो 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 सेम है, तो आई जीरो सेम ही होगा, सेम चीज है ना, आई जीरो। तो अब माइनस से प्लस से का कन्वेंशन देखिए, यही से आएगा। तो ये से क्या लिख सकते हैं, आई ए माइनस ऑफ आई ऑफ माइनस ए। अब मान लीजिए कि अगर ये ऑड फंक्शन है, क्या है, ऑड फंक्शन, अगर ये ऑड फंक्शन है तब क्या होने का, ये माइनस हम अभी नहीं ले रहे हैं, ठीक है सॉरी, ये कुछ नहीं ले रहे हैं, ये छोड़ दीजिए, ये जितना किया ना वो माइनस माइनस जीरो से माइनस ऐसे जीरो, मतलब आई जीरो माइनस आई आई माइनस है, ठीक है, आई जीरो माइनस ऑफ आई माइनस है, ऐसा ही लिखिए इसको, सॉरी आप एक काम कीजिए, तो इसको मिटा देता हूँ मैं, इसको भी मिटा देता हूँ, तो ये रहने दीजिए। हम्म, तो देखिए इधर पे तो जीरो, जीरो से लेके ए, सही है, जीरो से लेके ए, ये माइनस ए से, ये भी थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने, ये रहने दीजिए, इसको चेंज मत कीजिए, ये माइनस ए से लेके जीरो तक, ठीक है। तो आई जीरो वैल्यू आ गया, आई इंटीग्रेशन के बाद वैल्यू आएगा आई, रिजल्ट उसमें पुट कीजिएगा, पुट करना पड़ेगा, तो आई जीरो माइनस ऑफ आई माइनस है, ठीक है, इधर भी आई है माइनस ऑफ आई जीरो। तो इस इन दैट केस समझ में आ रहा है, आई होप सबको, अगर नहीं आएगा तो थोड़ा कमेंट में बताइएगा, आई ए माइनस ऑफ आई ऑफ माइनस ए, ऐसा कुछ है। तो इन दैट केस अब क्या बता सकते हैं, मैं यही बता सकता हूँ कि जब फंक्शन ऑड होगा, सब फंक्शन ऑड होगा, तब आई ऑफ माइनस ए, कुछ तो दिक्कत मैं कर रहा हूँ, मैं फिलहाल इसको स्किप करता हूँ और मैं अपना प्रीवियस पेज में चलता हूँ। हाँ, तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसे ही होता है, इसका डेरिवेशन में गलत कर रहा हूँ, मैं दिखा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में इसको कैसे करते हैं, और अब आपको तो आर डी शर्मा वगैरह अच्छे अच्छे बुक्स में मिल ही जाएगा इसका डेरिवेशन। ऐसे ही कुछ था कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, अब माइनस एक्स इक्वल टू मतलब माइनस ऑब्जर्व हो गया, तो ये ट्वाइस जीरो टू एल लिख दीजिए। हाँ, और एक प्रॉपर्टी कि ऐसा अगर रहा कि जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए एफ ऑफ जीरो टू ए इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स जीरो फ्रॉम लिमिट जीरो टू ए अगेन इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ एक्स एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स, मतलब टू ए प्लस जीरो माइनस एक्स, ठीक है, ऐसे ही लिख मान सकते हो। तब क्या लिख सकते हैं कि एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स अगर इक्वल टू एफ एक्स हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू एफ एक्स, तब ये ट्वाइस से मल्टीप्लाई होगा और ये टू बाहर चला जाएगा, जीरो टू ही रहेगा इधर पे, लेकिन यहाँ पे टू बाहर आ जाएगा, जैसे यहाँ पे कुछ बाहर नहीं आया था, ये जीरो से ये था। तो अब देख सकते हैं, हाँ यहाँ पे क्यू जीरो आएगा, मैं आप ही बता देता हूँ, हाँ यहाँ पे क्यू जीरो आ रहा है, क्यू टू आ रहा है, मेरे को याद आ गया ये कैसे करना था, मेरे को अभी याद आया। मतलब मेरा कॉन्सेप्ट सर में थोड़ा गड़बड़ हो गया था प्रूफ में। सो ट्वाइस ऑफ ये अगर होता है तो सिमिलरली इसका प्रूफ मैं अगला क्लास में बता दूंगा, लेकिन मैं पहले प्रॉब्लम्स पे चलता हूँ। उससे पहले और एक बार कोशिश करते हैं कि अगर ओ मैं कर पाऊँ, सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, जो बताया था मैं, जो मैं बता रहा था, ये मिटा देता हूँ, मेरा कोई गलती था, मैं सही से नहीं दिखा पाया सबको, सॉरी। अब दिखाता हूँ, तो इधर पे माइनस ए से लेकर जीरो एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो से लेके ए एफ एक्स
dx ऐसा रहेगा। तो इन दैट केस आप सब क्या कर सकते हैं कि देखिए एक चीज गौर कीजिए, ये ठीक है। हाँ, अब माइनस से आ गया एफ एक्स डी एक्स आया, 0 आया, ठीक है। इधर में माइनस से मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि हम लिमिट्स को थोड़ा छेड़छाड़ किया लिमिट्स के साथ। अब 0 से एफ एक्स डी एक्स। अब एक चीज देखने वाला एक ही चीज है कि जब इवन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इवन, तब ये जो माइनस साइन है, ठीक है, तब ये जो माइनस साइन है ये ऑब्जर्व हो जाएगा, ये ऑब्जर्व हो जाएगा। इसलिए ट्वाइस ऑफ एफ एक्स डी एक्स तो लिख सकते हैं इंटीग्रेशन करके 0 से लेके। ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ? इट्स द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स कि जब फंक्शन हो जाएगा आपका इवन फंक्शन, इवन फंक्शन है ये, ठीक है, तो एफ ऑफ माइनस से क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए हो जाएगा, सिंपल, राइट। बाकी एफ ऑफ जीरो तो मतलब जीरो ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो इसलिए ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स हो जाएगा, और कुछ ही चीज नहीं इसमें। अगर इसका एक एग्जाम्पल देखा मैं समझाना चाहूँ आप सबको, कि फिर आप लोगों को शायद क्लियर हो जाएगा, पक्का क्लियर हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर में डीएक्स को इंटीग्रेट कर रहा हूँ -1 से लेके 1 तक। तो उस एन एग्जाम्पल आपको समझने में और सही लगेगा। -1 से लेके 0, एक्स स्क्वायर टी एक्स प्लस, इसको पहले बता सकते हो सीधा कि ये इवन फंक्शन है, सो हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ 0 से लेके 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करो, क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3, ट्वाइस एक्स क्यूब बाई 3, 0 से लेके 1, तो बेसिकली 2/3। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ट्रेडिशनली मैं जो दिखा रहा हूँ ना, ये ऐसा मेथड में आप स्प्लिट करके करो, तो 0 से 1, -1 से 0, 0 से 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो आप इधर पे आपको क्या मिलेंगे कि इसका जो इधर पे आएगा इंटीग्रेशन, तो आप पहले देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इस केस में क्या है, इवन है। -1 से 0 इसका बिहेवियर क्या होता है, ये नेगेटिव है, लेकिन इसका बिहेवियर अनचेंज है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेट करो, एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -1 से लेके 0। हाँ ठीक है, अब -1 से लेके 0 तक करोगे तो ये क्या आ जाएगा, -1/3 आ जाएगा ना। मतलब हाँ सही है, लेकिन माइनस ऑफ माइनस मतलब ये तो 0 आ जाएगा, 0 प्लस 1/3। तो अब अगला इंटीग्रेशन भी सिमिलर, मतलब एक्स क्यूब बाई 3 आएगा, इधर से 0 से लेके 1 तक। तो 0 से लेके 1 तक करोगे तो देखो, ये तो 0 आ जाएगा, तो 1 तो 1, तो 1/3, 1/3, 2/3 प्लस आ गया। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ क्यू प्लस है। तो जैसे मैं वहां पे दिखा रहा था आप लोगों को कि इधर पे पहले आएगा, अगर आप माइनस कॉमन नहीं भी लोगे, छोड़ दो, माइनस में कुछ नहीं किया मैं, अब ऑड इवन में, हाँ मेरे को आप समझ में आया मेरा गलती कहाँ हो रहा था। इसको आप ट्रेडिशनली कुछ मत लिखो, ऐसे ही लिखे रखो कि माइनस ऐसे 0 ही लिखे रखो। मैं क्या कर रहा था, मैं ऑड के लिए पहले माइनस 2 बार माइनस आ रहा था, इसलिए मेरे को कंफ्यूजन हो गया। ऑड के लिए एफ ऑफ माइनस है इक्वल टू, मतलब इसको माइनस एफ एक्स लिख रहा था मैं, लेकिन अब मेरे कुछ कुछ नहीं लिखना है, मेरे को बस देखना है इसका बिहेवियर क्या हो रहा है। तो -a से लेकर 0, और इधर पे 0 से लेके a। तो इन दिस केस यू कैन सी दैट दिस विल बी I of a minus I of 0, right? So in this case like this, and we can see that in case of twice of कुछ आ सकता है कि नहीं, अभी हम इसको सोचेंगे, ठीक है। कि अब देखो इधर पे आएगा, अगर आपका इवन फंक्शन है तो I0 आ गया, ठीक है, माइनस ऑफ
आई ऑफ माइनस ए, ऐसा आप देख सकते हो कि इधर पे आएगा, तो आई जीरो क्या हो जाएगा, रफू चक्कर। तब आई ए जो आएगा, ठीक है। अब समझ लो कि ये इवन है, इसका इंटीग्रेशन क्या का है, ऑड आ रहा है। मतलब सारा इवन का इंटीग्रेशन ऑड आ सकता है, नहीं वैसे तो मेरे को उतना गारंटी नहीं है, लेकिन इधर पे ये ऑड आएगा, तो ऑड पे माइनस बिठा दो, समझ रहे हो। ऑड पे माइनस बिठा रहे हो मतलब वो वैल्यू नेगेटिव ही आएगी, नेगेटिव और नेगेटिव क्या होगी, या पॉजिटिव हो गया। अगर इवन हो गया, अगर आई के पहला चीज, मतलब क्या बोल रहे हैं, एफ एक्स अगर आपका इवन हो गया, एफ एक्स इज इवन, एफ एक्स इवन हुआ, तब क्या होगा, इसके इंटीग्रेशन ऑड हुआ, राइट। अगर ऑड हुआ तो आई ऑफ माइनस ए इक्वल टू प्लस आई ए, तो टू आई ए, राइट। समझ रहे हो। सिमिलरली आप साइन एक्स कॉस एक्स से भी देख सकते हो, सिमिलर टाइप का बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा। तो मैं इधर पे काम करता है, ठीक है। इधर पे आप x देके देख सकते हो, x डी एक्स माइनस वन से लेके वन, इसको आप देख के बता सकते हो जीरो आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर आता है, इसका मतलब ऑड का इवन। देखो ऑड का इवन आ गया, तो ये इवन आ गया, तो ये माइनस ऑब्जर्व हो जाएगा, तो आई ऑफ ए क्या हो जाएगा, रफू चक्कर हो जाएगा। आई ऑफ ए रफू चक्कर, क्योंकि माइनस ऑफ आई ऑफ माइनस से इक्वल टू आई ऑफ ए हो जाएगा, क्योंकि इवन है ना, ऑड का इवन, इवन का ऑड। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप देखिए एक्स डी एक्स अगर इंटीग्रेट करते हैं माइनस वन से वन तक, तो इधर पे कुछ ऐसा आएगा, आई ऑफ माइनस वन से जीरो, माइनस वन जीरो मतलब आई जीरो माइनस ऑफ आई ऑफ माइनस वन प्लस आई ऑफ वन माइनस आई ऑफ जीरो। तो आई जीरो तो कहा क्या घर में कट गया, लेकिन आई वन माइनस आई ऑफ माइनस वन रह गया। तो देखिए आई इन दिस केस आई नहीं, मतलब फंक्शन क्या है आपका, फंक्शन आपका है ऑड, तो ये हो गया इवन। जैसे ही इवन हो गया तो माइनस वन तो ऑब्जर्व हो जाएगा, हो गया ऑब्जर्व। तो आई ऑफ वन माइनस आई ऑफ वन, ये गया घर, आई ऑफ आई माइनस वन इक्वल टू आई वन हो जाएगा इन दैट केस, तो जीरो हो जाएगा। तो ये रहा इसका प्रूफ, सिंपल तरीके से प्रूफ, कोई कॉम्प्लिकेटेड बुक की तरह से मैं नहीं दिखा रहा हूँ, सिंपल दिखा रहा हूँ विद एन एग्जाम्पल। अगर आप चाहे तो मैं साइनिक्स का भी करके अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। इसमें साइन एक्स का भी करके दिखा देता हूँ, साइन और कॉस एक्स का। मैं बोला साइन एक्स क्या है आपका, साइन एक्स इज अ फंक्शन, तो साइन एक्स डीएक्स को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू तक, तो इसका बिहेवियर क्या होगा, ये जीरो पे क्या हो रहा है, थोड़ा चेंज हो रहा है इसका ग्राफ, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। तो ऐसे आप ब्रेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साइन का डेरिवेटिव मतलब सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है, एक साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स होता है, एंड cos x इज इवन फंक्शन, राइट। इसलिए हम इधर पे लिख सकते हैं ना, सीधा लिख सकते हैं, इधर पे साइन क्या है, ऑड फंक्शन है, साइन x इज अ ऑड फंक्शन, सो यू कैन राइट टू, राइट। हम टू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, क्यों, साइन एक ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन में क्या बोला जाता है कि जीरो से पाई बाई टू लिख दो, लिखो क्या, नहीं लिखो, सीधा जीरो लिख दो। क्यों, क्योंकि एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ पाई बाई टू इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, या फिर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, सेम चीज घुमा के लिखे, माइनस एम किसी भी साइड में प्लेस कर दो सेम ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इवन हो रहा है, देखो फिर से वही वही वाला दिक्कत, तो ये कट के निकल जाएगा, सीधा कट के निकल जाएगा। सो दिस इज द केस, तो मैं दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं फिर भी। तो ये जीरो बैठ गया, देखो साइन एक्स डी एक्स आ गया, आ गया। तो इधर पे भी क्या आएगा, इधर पे जीरो से पाई बाई टू आएगा, साइन एक्स आ जाएगा, dx आएगा, कोई दिक्कत है नहीं है। तो अब देखो माइनस पाई बाई टू से लेकर जीरो तक साइन का ग्राफ क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं, तो माइनस तो बाहर चला गया एक, पहले तक माइनस आया, वो माइनस कहा गया बाहर,
अब साइन एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन लिख सकते हैं सीधा, कॉस एक्स लिख सकते हैं, कॉस एक्स डीएक्स, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इधर पे क्या लिख सकते हैं, प्योर लिख सकते हैं माइनस कॉस एक्स, ठीक है। लिमिट्स क्या हो गया, पाई बाई टू से लेके, 0 से लेकर पाई बाई टू, सेकंड के लिए। अब ये पाई बाई टू क्या होगा, कॉस पाई बाई टू 0 और माइनस कॉस 0 कितना होता है 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, तो इसका क्या -1 आना ही है, नहीं आएगा तो मतलब मैंने कहीं झमेला किया है। कॉस ऑफ 0 इज अगेन 1, कॉस ऑफ 0 इज 1, कॉस ऑफ माइनस पाई बाई टू 0 रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। बिहेवियर चेंज हो रहा था, मैं बोला साइन एक्स का बिहेवियर चेंज होता है कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू 0, at x equal to 0 behavior changes, so we split it into two parts first of all, and we can see that uh, sin x इक्वल टू माइनस साइन एक्स नहीं लिखेंगे इधर पे, साइन ऑफ माइनस एक्स लिखे थे क्या हम, साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, कुछ लिखने का जरूरत ही नहीं है, सिंपली आप काम कर दो, इधर पे माइनस कॉस एक्स लिख सकते हो, ठीक है। इधर पे भी माइनस कॉस एक्स ही रहता है, पाई बाई टू 0 है, समय +1, और इधर पे माइनस -1 -0, तो ऐसा ही होता है। तो 1 की तरफ माइनस रहेगा बाहर, एक माइनस कॉस एक्स की वजह से, +1, यानी कि इधर पे आएगा 0, ऐसे। तो प्रीवियस पेज पे भी मैं जाके दिखा देता हूँ एक बार कि मेरा कुछ दिक्कत हो रही है आज। तो क्या किया मैंने, सिंपली इंटीग्रेट किया, ठीक है, सिंपली इंटीग्रेट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहता है ना, वो चेंज थोड़ी होता है। अब रिप्लेस मत करो, रिप्लेस करने का जरूरत नहीं है, मॉड्यूलस नहीं है, ये पीस वाइज फंक्शन नहीं है, स्प्लिट करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पीस वाइज के सब वैल्यू मत पुट करो, इतना क्लियर रखना है कि अगर मेरा साइन एक्स को इंटीग्रेट करना है, करते हैं ना सिंपली इंटीग्रेट, क्या दिक्कत है आपका, बस। लेकिन ये बिहेवियर क्योंकि चेंज हो रहा है, इसलिए हम -π/2 से लेके 0 तक रखते हैं। अबे क्यू कैंसिल आउट हो रहा है, ये पार्ट हो गया नेगेटिव, ये पार्ट हो गया पॉजिटिव, मतलब एरिया की बात कर रहा हूँ, तो दोनों तो इक्वल एरियाज है, तो उड़ जाएंगे। अब कॉस का क्या होता है, कॉस का कुछ लोचा ऐसा है, देख सकते हैं आप कि कॉस अगर देखें हम, कॉस, तो अब देखे कि कॉस ऐसा है कि ग्राफ ऐसा जाता है कॉस का, साइन के सीधा उल्टा, मतलब ये, सॉरी मैंने ये साथ कॉस का ग्राफ बना दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, साइन का ग्राफ ऐसे आएगा, ठीक है, ये रहा साइन का ग्राफ, तो ये नेगेटिव, ठीक है, और ये पॉजिटिव, दोनों इक्वल ही है, मतलब माइनस पाई बाई टू बोला था ना मैंने, सॉरी, माइनस पाई है, ये पाई है, तो -π/2 से +π/2, तो ये पार्ट इक्वली एरियाज में डिवाइडेड है, ठीक है, बस क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सिमिलरली कॉस का ग्राफ कैसे आता है, कॉस का ग्राफ कुछ ऐसे आता है, दिस इज कॉस, देख सकते हो आप, डिफरेंस फील करोगे ग्राफ में थ्रू से करोगे तो, ये -π, ये π/2 है, प्लस में ये -π/2 है, तो फील करो ना आप। हाँ, इधर पे देखो, ये रहेगा आपका पाई, ये 3π/2, ठीक है, ऐसे 0 रहता है, कोई दिक्कत नहीं, 0, देखो 0 पे ये 1 रहता है पहला, तो पाई पे भी ये, पाई पे क्या रहता है, ये -1 रहता है, अब 2 पाई पे क्या रहता है, फिर से 1 रहता है, तो यह ग्राफ ऑफ कॉस, इसलिए आप जब कॉस को इंटीग्रेट करते हैं, देख सकते हैं, कॉस को इंटीग्रेट करते हैं, उसका आ जाता है साइन एक्स, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन क्या आता है, साइन, जो एक है आपका ऑड फंक्शन, अब ऑड क्या बोला, हजम तो नहीं कर सकता, इसलिए ऐड हो जाएगा, 2 ऑफ आई ऑफ ए, इधर पे π/2 है, मतलब मैं ऐसे ही बोला, सो दिस इज द केस, व्हाट यू आर डूइंग,
सो ऐसे ही डेरिवेशन सिंपली तरीके से आप याद रख सकते हो। और जो फॉर्मूला मैंने बताया, और एक फॉर्मूला आपको याद रखना है जस्ट, कि अगर एक फंक्शन ऐसा रहा कि 0 से लेके 2a तक एफ एक्स ए डी एक्स, तो इसको आप लिखे, ऐसे लिखे सिंपली, 0 से लेके a लिखे 2 f(x) dx। अगर अगर क्या, f ऑफ 2a, इफ f ऑफ 2a माइनस x इक्वल्स टू f(x), ठीक है। एल्स अगर क्या होता है कि f ऑफ 2a माइनस x अगर इक्वल टू माइनस ऑफ f(x) आ जाता है, ठीक है। तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं, इन दैट केस आप कीजिए ना जो कर सकते हैं, आप जो चाहे कीजिए ना। देखिए क्या कर सकते हैं इधर पे, कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में भी ये लग जाता है कि ऐसा आपका है 0 से लेके पाई तक है, ऐसा मतलब सॉरी माइनस पाई से लेके पाई तक है। सॉरी मैं ही गलती कर रहा हूँ शायद। 0 से लेकर पाई तक, माइनस से नहीं, मतलब 0 से लेकर पाई तक। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि, अब देखिए, पाई को लिख सकते हैं 2 × π/2, ठीक है, 0। अब क्या देख सकते हैं आप, 2a है, 2a है ना, तो अब पाई माइनस एक्स अगर हो जाता है, सपोज साइन हो गया, साइन साइन पाई माइनस एक्स क्या हो जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में गिरेगा, साइन ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो साइन एक्स ही हो जाएगा। इन कॉस करोगे तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही आता है ना, कि नहीं नहीं, कॉस कॉस ही रहता है, इधर से माइन साइन नहीं होता, सॉरी साइन नहीं होता, तो माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। मेरे को चाहिए कॉस 120 डिग्री सपोज, तो कॉस 120 डिग्री इज इक्वल टू नथिंग बट कॉस ऑफ पाई माइनस 60 इक्वल टू माइनस कॉस 60 डिग्रीज। अब माइनस कॉस 60, अब ऐसा मान सकते हैं, ऐसे में लिख सकते हैं कि साइन 120 को लिख सकते हैं क्या आप, माइनस माइनस नहीं, पॉजिटिव साइन ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। इसका कॉस नेगेटिव हो जाएगा। अब खुद भी देख सकते हैं कि कॉस 120 का वैल्यू क्या हो सकता है, फ्रॉम द ग्राफ विल टेक आउट मल्टीपल थिंग्स। तो ये रहा 90, ये रहा 90 ना, ये π/2 है, ये है क्या पाई। तो आप देखें कि आपको वैल्यूज चाहिए क्या। अब एक चीज आप आराम से विजुअलाइज कर पाएंगे, बहुत ही आराम से। हम्म सॉरी ये 0 है, ये 0 है, सॉरी 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 मैं थोड़ा गलत लिख रहा हूँ, ये π/2 है, ये 0 है, π/2 है, ये पाई है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को कुछ ऐसा वैल्यूज चाहिए कि, देखो कैसे आप निकाल सकते हो वेरी इजीली। π/2 से कम एक वैल्यू मेरे को, π/3 60 डिग्री सपोज, ठीक है, उसका ऑपोजिट कौन होगा, ये होगा या दूर वाला होगा, बताओ आप, अब खुद ही बताओ, खुद ही बताओ। हाँ बताओ कौन होगा, तो माइनस कॉस 60, तो यही बात होगी। तो इन दैट केस वो चेंज नहीं होता, साइन नहीं होता, ठीक है। सो दिस थिंग, सो आपको ये देखना है। तो इन दैट केस आप क्या लिखोगे कि अगर माइनस हो गया तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। जैसे आप खुद ही देख सकते हो, करके भी देख सकते हो, नया पेज में मैं दिखाता हूँ आपको कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई cos x dx, ग्राफ से भी निकाल सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट से। सो देखिए cos का कर्व कुछ ऐसा जाते हैं, मैं बोला 0, 0 से लेकर पाई, ठीक है। ये तो पॉजिटिव एरिया है, सही है, लेकिन ये बिलो द एक्स एक्सिस नेगेटिव, क्यों, क्योंकि ये पोर्शन नेगेटिव है, ये पोर्शन है पॉजिटिव, इधर दोनों ही पॉजिटिव है, ठीक है। अब दूसरा दिखाते हैं, दूसरा मैजिक देखो, लेकिन ये एक वन ऑफ द मैजिक है कि आपका ये क्या हो जाएगा, आप करके भी दे सकते हो कि cos x का क्या होता है, इंटीग्रेशन sin x होता है, sin x dx नहीं रहेगा। अब पाई से लेके 0, मतलब हाँ 0 से लेकर पाई, 0 से लेकर पाई, इसमें बिठा के देखो,
साइन एक्स साइन ऑफ पाई क्या होता है? साइन ऑफ पाई आप बताओ। साइन पाई जीरो होता है, और जीरो तो जीरो ही होता है, तो जीरो माइनस जीरो जीरो, कोई दिक्कत। सिमिलरली अगर ये साइन एक्स रहता, मैं सिंपली बोल सकता हूँ इसका वैल्यू क्या होगा, टू इंटू इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू, मतलब हाँ साइन एक्स डी एक्स। तो इसको इंटीग्रेट करो फटाफट, करो करो करो। साइन एक्स का आ जाता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस ऑफ कॉस एक्स, तो साइन एक्स का आता है माइनस कॉस एक्स। तो अब जीरो से पाई बाई टू ले सकते हैं, तो साइन पाई बाई टू क्या होता है? वन होता है। साइन जीरो क्या होता है, मतलब सॉरी कॉस पाई बाई टू कितना होता है? जीरो होता है। और कॉस जीरो माइनस वन, तो जीरो से माइनस वन लेते हैं तो इधर पे प्लस टू आ जाता है। तब कर्व से अब देख सकते हैं कि साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए था आपको, चाहिए था कि नहीं? बोलोगे हाँ भैया चाहिए था। तो आप देखो कहाँ से कहाँ चाहिए था, जीरो से लेकर पाई तक। तो जीरो से लेकर पाई, हम्म, ये रह गया पाई बाई टू। तब का कौन सा वैल्यू चाहिए था बोलिए तो जरा मुझे। साइन एक्स डी एक्स करेंगे जीरो से लेके पाई तक, ये तो कट गया, ये कट गया। कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं? आंसर टू आ रहा है, टू टू, टू आ रहा है टू, पाई बाई टू। एरिया नहीं निकल रहा है, ठीक है, इधर एरिया नहीं निकल रहा है, निकल रहा है हम लोग, वरना कुछ लोचा हो जाता। हाफ इंटू बेस इंटू, मतलब छोड़िए छोड़िए उतना मैं नहीं बोल रहा हूँ। इधर पे इतना वन अप्रोक्सीमेट कर देते हैं इसको, कॉन्स्टेंट करने से छोड़ दीजिए, जो बोल रहा था अभी छोड़ दीजिए, इतना झमेला करने का जरूरत नहीं है। सो ये टू आ रहा है निकल के वैल्यू, पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आ सकता। जीरो से लेकर पाई तक बताया था मैंने, तो जीरो से लेकर पाई तक मतलब जीरो से लेकर पाई बाई टू तक, पाई बाई टू तक, मतलब ये ऐड अप होंगे, ये कैंसिल आउट नहीं होंगे। जीरो से लेके वन, वन से लेके टू, मतलब इधर से ऐसा नहीं होता कि आप मान सकते हो कि पाई बाई टू का वैल्यू कितना होता है, 1.57, राइट? पाई का कितना होता है 3.14। तो आप देख सकते हो कि मैं थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ इस चीज को, कि साइन एक्स डी एक्स का अगर मतलब इंटीग्रेशन करें जीरो से लेकर पाई तक, तो इसको टू इंटू ऐसा लिख सकते हैं। क्यों क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि साइन ऑफ टू इंटू पाई बाई टू माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, लिख सकते हैं ऐसा ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए ऐसा हम लिखे, लिखने के बाद ऐसा किए कि साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस आएगा, ये कॉस का तो माइनस साइन आता है, साइन का आता है कॉस, सॉरी माइनस कॉस। साइन कॉस का आता है साइन, और साइन का आता है माइनस कॉस। ये लिखा देखो मैंने, पाई बाई टू, पाई बाई कॉस पाई बाई टू, अब सही है। ये प्लस टू आ रहा है, प्लस टू। एरिया नहीं चाहिए था आपको, एरिया इधर पे एरिया निकलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको निकालना है इधर पे सिंपल इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। हाँ, अब विदाउट एनी फर्दर कंफ्यूजन, ये तो कुछ जेई का आपका काम आने वाला चीज मैंने बता दिया। कुछ सीबीएसई का क्वेश्चंस देखते हैं इन द फर्दर का, मतलब क्या बोलते हैं लेक्चर्स, मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ। पहले ये देख लेते हैं कि ऐसा अगर रहे तो क्या करोगे। वो वाला फॉर्मूला लगा दो ना, कि एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, इसका मतलब किससे इक्वल होता है, एफ एक्स डी एक्स। इसका अपर लिमिट था बी, लोअर लिमिट था ए, इसका भी अपर लिमिट है टू, तो सेम चीज है। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है इसको हम यूज करते हैं कहाँ पे, यहीं पे यूज कर लेते हैं, और आपका आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे देख सकते हो, इसको आई पकड़ लेते हैं, तो आई इक्वल्स टू दिस, जीरो टू पाई बाई टू, फाइव साइन एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स, ठीक है। और नीचे क्या है आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, ठीक है। अब पूरा का हाँ dx, तो
अब क्या लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, ऐसा प्रॉपर्टी लिख के इसको तो अगर आप वन डिनोट कर दे कोई दिक्कत नहीं, कर दे सकते हैं। आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 से π/2 तो होगा ही होगा, इधर पे 5 sin π/2 - x प्लस कॉस π/2 - x, ठीक है। इधर पे कर्ली ब्रेसेस में लगा रहा हूँ, ठीक है, dx तो बाहर रहेगा ही रहेगा, और नीचे आ जाएगा साइन ऑफ π/2 - x प्लस कॉस ऑफ π/2 - x, ठीक है, ये भी कॉस ऑफ π/2 - x dx। तो आप लिख सकते हैं इसको इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, कि सॉरी, इसको इक्वल टू आप लिख सकते हैं 0 से लेके π/2 इंटीग्रेशन में 5 कॉस साइन π/2 - x मतलब साइन 90 - x मतलब रेडियन में बोलता रहे, 5 cos x प्लस cos π/2 मतलब साइन x। सिमिलरली नीचे भी लिख सकते हैं आप साइन x, ठीक है, प्लस cos x, सिंपल। तो आप अब क्या करेंगे, अब एक पेज में ऐड कर देता हूँ, सॉरी, हाँ, और लिखता हूँ इधर पे आई प्लस आई, ठीक है, आई प्लस आई क्यों, क्योंकि प्रीवियस पेज में आप जाओ तो इसको आप लिख सकते हो, ये 2 नंबर इक्वेशन है, ये भी आई है, ठीक है। तो इधर से एक वन है, इधर से दोनों दोनों आई है, दोनों को ऐड कर दिया। तो आई प्लस आई को क्या लिख सकते हैं हम लोग, नीचे तो कॉमन है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ही आ जाएगा, ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ही आएगा। प्रीवियस पेज में जाओ और देखो, आप सोचेंगे मैंने इधर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का है लिखा, साइन π/2 - x क्या होता है आपका, cos x होता है, cos π/2 - x साइन x होता है। तो आपके इधर लिख सकते हैं ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू cos x प्लस साइन एक्स, इट्स कम्यूटेटिव और नॉट, इट्स कम्यूटेटिव, नो दिक्कत इन दैट। तो ऐसा हो गई, तो इसलिए हम लिख दिया। तो 5 cos x प्लस 5 साइन मतलब प्लस 3 cos x क्या हो जाता है, 8 cos x, ठीक है, देखिए, और 5 साइन एक्स दोनों को क्लब कीजिए, सिमिलर साइन एक्स को और cos x को, इधर से देखिए, इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, इसको कंसीडर कीजिए 1 को, और इधर कंसीडर करिए 2 को, देखिए साइन एक्स प्लस 5 साइन एक्स कॉस 3 cos x प्लस 5 cos x, इधर पे 3 था शायद ना, हाँ, लेकिन आप भूल गया 3 cos x, तो 3 sin x, तो हाँ क्या था, 5 cos x प्लस 3 cos x 8 cos x, 5 sin x प्लस 3 sin x 8 sin x, तो 8 sin x प्लस cos x। तो नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं और देखते हैं 8 sin x प्लस 8 cos x dx, तो ऊपर है ही आपका, कोई दिक्कत नहीं, 8 को बाहर ले लीजिए, इधर sin x प्लस cos x ऊपर नीचे दोनों जगह। तो क्या देख सकते हैं हम, इधर से sin x प्लस cos x क्या हो जाएगा, रफू चक्कर हो जाएगा, रफू चक्कर हो जाएगा, ये भी गया ये भी गया, लीजिए, आपका काम था, हमारा लिमिट्स भी था ना कुछ, इधर पे 2i लिख दीजिए, तो 2 से 4 कट गया, कोई दिक्कत नहीं, इधर पे लिमिट्स आपका ऑलमोस्ट, रुकिए मैं लिमिट से को चेक कर लेता हूँ, 0 से π/2 वही रहता है मैक्सिमम स्टैंडर्ड केस में, 0 से π/2, इधर पे 4 इंटू, हाँ, तो 4 आंसर होगा, 4 इंटू 0 से π/2, तो इंटीग्रेशन का लिमिट्स हो गया, इधर dx को इंटीग्रेट करेंगे तो x आ जाएगा, तो 4x हो गया आपका। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या होगा, 0 से π/2 हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू π/2 मतलब π/2 - 0, यानी कि 4 इंटू π/2, तो 2 से 2 कट, 2 पाई, 2 पाई। तो इसका आंसर है, हम जाके लिख देते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा पर 2 पाई, यही होना चाहिए। आप लोग खुद करके देख सकते हो, अगर प्रॉब्लम आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं भी फिर अगले सेशन में इसका कोई डाउट अगर रहे, या फिर आपको लगता है कि आंसर मेरा गलत है, आप लोगों का कुछ और आ रहा है, तो वो भी बताना, तो फिर मैं आपका अपना आंसर क्रॉस चेक करूंगा, लेकिन प्रोसीड्योर ऐसे ही होना चाहिए। तो आप सिमिलरली इधर पे भी देख सकते हैं, सिमिलर वही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, कि π/2 प्लस 0 - x, मतलब क्या लगाएंगे, 2 टू द पावर, डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है, इसको आई मान लेते हैं, तो ये इक्वेशन 1 हो गया सपोज। तो अब क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल्स टू, ये प्रॉपर्टी इधर पे लगा दिए, साइन π/2 - x 2 टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर
তো dx তো হচ্ছে আর এখানে से 0 से पाई बाय 2, राइट। और नीचे 2 रेस्ट टू द पावर साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, सिमिलरली लिख सकते हैं प्लस कॉस 2 रेस्ट टू द पावर कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 0 से लेके पाई बाय 2, तो अपर लोअर लिमिट्स फिक्स है। तो 2 रेस्ट टू द पावर साइन पाई बाय 2, सो सिमिलरली आप पढ़ सकते हैं कॉस एक्स है। तो इधर पे 2 टू द पावर कॉस एक्स प्लस 2 रेस्ट टू द पावर साइन एक्स हो गया, ठीक है, dx, राइट। तो इधर से आप देख सकते हैं कि ये भी आई है ना, आई है, तो इक्वेशन ये 2 है। 1 2 का जैसे ऐड कीजिए, ठीक है, तो आई प्लस आई 2 आई इक्वल्स टू 2 टू द पावर साइन एक्स प्लस 2 टू द पावर कॉस एक्स। 0 से पाई बाय 2 तो लिमिट्स है, मैं लगाना भूल जाता हूँ, 2 टू द पावर कॉस एक्स हो गया dx, और नीचे हो गया 2 टू द पावर साइन एक्स प्लस 2 रेस टू द पावर कॉस एक्स, राइट। तो इन दोनों को क्या हो जाएगा, रफू चक्कर हो जाएगा, दोनों आउट रहेंगे ही नहीं आपके पास। तो सिमिलरली इस बार भी 2i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इस बार कुछ नहीं, वो हाफ ऑफ क्या होगा, मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा, सॉरी, हाँ, सॉरी, हाँ, इसको थोड़ा मूव करता हूँ। तो हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx दैट इज इक्वल टू फ्रॉम द लिमिट्स 0 टू पाई बाय 2। अब dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, और ये x को अगर इधर से 0 से पाई बाय 2 के बीच में घुमाए तो क्या आएगा, पाई बाय 2 माइनस 0, हाफ ऑफ दिस इक्वल्स टू पाई बाय 4। तो पाई बाय 4 इज आवर आंसर। तो आंसर इधर पे आपको से पूछेगा तो आपको बता देना सीधा, भैया जी या सर जी ये पाई बाय 4 होगा। तो ये हो गया 26 का भी खत्म। तो प्रीवियस पे देखते हैं हम, प्रीवियस का क्वेश्चन क्या था, ये भी खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत सिंपल है, मैं आपको बता के रखा हूँ, कोई दिक्कत वाली सीन नहीं है पहले इस केस में, क्योंकि आप इधर पे तीनों को स्प्लिट कीजिए, कैसे स्प्लिट करेंगे, तीनों तीनों को अलग से इंटीग्रेट कीजिए, क्योंकि तीनों फंक्शन क्या है, अलग अलग फंक्शन है। मॉड एक्स माइनस 2 एक अलग फंक्शन है, मॉड एक्स माइनस 4 एक अलग फंक्शन है, और मॉड एक्स अलग फंक्शन है। तो मॉड एक्स का कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव मतलब चेंज ही नहीं होगा, 0 से 4 तक ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये एक्स से dx सीधा आप इंटीग्रेट कर दीजिए और बोलिए सर ये तो हमारा हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, लीजिए अब 0 से 4। अब दूसरे जो केस है, तो इधर पे थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन क्या होगा हम देखते हैं, इसका कर्व अब बनाएंगे, आप देख सकते हैं कि x इक्वल टू 2 से ही जा रहा है, ठीक है। मतलब कि जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा तब एक अलग बिहेवियर होगा, x लेस देन 2 पे एक अलग बिहेवियर होगा, तो 2 पे ये टूटेगा, पक्का टूटेगा। तो 0 से लेके 2, 2 से लेके 4, ऐसे इंटीग्रेशन ही जाएगा, राइट। 2 से लेके 4, तो अब 4 जो है वो 4 से जाके टूटेगा, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 पे अलग बिहेवियर, इस पे अलग बिहेवियर। तो इधर से 0 से 4 आप चला जाइए, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 0 से 4, लेकिन ये हाँ, सबसे पहले मैं ये निपटा देते हैं। तो 4 का 16 है, ये 8 आ गया। अब मॉड x माइनस 2 ये आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, जैसे वो पहले मैंने दिखाया ना कि पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया, तो वैसे किया जा सकता है। लेकिन आई डोंट वांट टू टेक द रिस्क ऑफ एरिया ऑफ एरिया, बिकॉज आई आर नॉट वी आर नॉट ऑल ऑफ अस, मतलब ऑल ऑफ अस स्टडीड एरिया, बट आई आर नॉट डिस्कस्ड एरिया स्टिल नाउ। तो मैं ये टिल नाउ तो मैं ये मान के चलूंगा कि आप बेसिक इंटीग्रेशन से इसको सॉल्व करें। सीबीएसई बोर्ड में भी आपको अलाउ नहीं करेगा, अगर इंटीग्रेशन का चीज है इंटीग्रेशन से ही करने बोलेगा, एरिया का चीज है तो एरिया बाउंडेड रीजन से करने ही बोलेगा। तो मॉड ऑफ x माइनस 2, तो इसको कहाँ कहाँ टूटना पड़ेगा, तो वैसे ही बोल दिया मैंने, 0 से 2 से टूटो इसको। 0 से 2 जैसे ही करोगे तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव प्रॉपर्टी दिखता है, तो 2 माइनस एक्स लिख दो इसको, dx प्लस, अब 2 से लेकर 4 तक क्या दिखेगा, ये x माइनस 2 एज इट इज dx। अब x माइनस 4 से 0 से 4, तो x माइनस 4, अब 4 से ज्यादा तो नहीं है, अब ये 4 से ज्यादा होता तो ठीक था। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 4 माइनस एक्स हो जाएगा। क्यों, ये मतलब 0 से लेके 4, खुद ही सोचिए 0 से लेके 4 तक, मतलब ग्राफ यही जाएगा।
ये रही बात, इससे ग्रेटर और इधर तक क्या पूरा खत्म। तो 4 - x, 4 - x, तो इन दोनों को इंटीग्रेट करके कुछ आंसर आएगा, मैं बता देता हूँ। 2 - x का कीजिए, 2x - x²/2, तो इधर बाई 2 × 4, ठीक है। -x²/2 मतलब क्या होता है, अगेन 0 से 2 लीजिए, 4 - 2, 4 - 2 = 2, ठीक है। तो 10 हो गया, इधर तक 10 हो गया। अभी बाकी है, तो x - 2 को भी इंटीग्रेट करना बाकी है। तो 0 से लेके 2, x - 2 था ना, सॉरी सॉरी 2 से लेके 4, सॉरी 2 से लेके 4, x - 2, तो x²/2 पहला। तो 2 से लेकर 4 कर दीजिए, तो 16 कितना हो गया, 16² -2² 4, 12 6, तो ये हो गया 6, ठीक है। -2x, अब 2x में देखिए 4 - 2 = 2, 4 - 2 = 2, तो 2 × 2 4, राइट। सो 6 - 4 = 2 अगेन, तो ये 12 हो गया। मतलब सेकंड पार्ट के लिए मैं बोला, सेकंड पार्ट 8 + 4, सेकंड के लिए 4 आया, राइट। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। 4x - x²/2, राइट। तो 4x के लिए देखिए, तो 4 से 0 पे जाएंगे तो 16 आ जाएगा, तो इधर पे x²/2 है, मतलब 16 से 8, मतलब 8, मतलब 8 है आंसर, मतलब 8, 12 + 8 20, 20 आंसर आ रहा है। ये वेरीफाई भी कर सकते हो, क्रॉस चेक की सही है कि गलत है। पहले देखो 0 से 4 तक, 0 से 4 तक इसका एरिया निकाल सकते हैं हम, निकल सकते हैं क्या, एरिया बता रहे हैं एरिया 0 से 4 तक। हम्म, 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 क्या होगा, ये 4 है, mod x, तो ये भी 4 होगा, तो हाफ कर दो इसका, 8, ठीक है। अब x - 2 का थोड़ा दिक्कत आ सकता है कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ऐसी बात है। अब 2 से लेकर 4 तो 2 यूनिट हो गई, अरे 8 हो गई, 8 हो गई ना। यहाँ भी सिमिलर 2 यूनिट हो गए, 2 2 4, तो 8 - 4 4, तो 4 ही आएंगी, तो 4 और 8 क्या 12, सही है। और थर्ड के लिए देखिए, थर्ड के लिए क्या आएगा, मतलब x - 4, मतलब पूरा का पूरा ही नेगेटिव आना चाहिए था, कुछ तो दिक्कत की आप। 4 - x, x - 4, लेकिन 0 से 4 तक इंटीग्रेट करिए ना, 0 से 4 तक इंटीग्रेट करे। रुकिए, 0 से 4 इंटीग्रेट करे, लेकिन एक ही दिक्कत है कि इधर से 4 4 16, 16 ही आ रहा है, लेकिन ये नेगेटिव में होता ना। 12 + 8 20, 20 12 + 8 20 हो गया। और 4 - x को इंटीग्रेट करे तो 4x - x²/2 आ जाता है, तो इसको 0 से 4 तक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 0 से 4 16, -16/8 मतलब 8, 8 आ रहा है, 8 16 - 8, सॉरी 16 - 8 8 आ रहा है। तो 12 + 4 16, 12 + 4 is 16, and 16 and क्या बोल सकते हैं, 16 and 8 24, so इसका आंसर 24 स्क्वायर यूनिट्स का आंसर आएगा। फिर मैं क्रॉस वेरीफाई करता हूँ, मेरा दिमाग में भी मेल फंक्शन कर रहा है। देखिए 2 - x, 0 से 2, तो 2x - x²/2, 2x - x²/2, इसका लिमिट्स था 0 से लेकर 2, तो मतलब हाँ 0 से लेकर 2 मतलब ये 4 हो गया। अब 0 से लेकर 2 मतलब ये 2 आ गया, 2 आ गया। अब इधर पे देखते हैं, इधर पे जो आएगा, तो 2 - x था,
सॉरी एक्स माइनस टू था, तो एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस टू एक्स। अब पहला देखते हैं हम 4 से लेकर 2 तक, तो 4 स्क्वायर इज 16 एंड 2 स्क्वायर इज 4, तो 6 माइनस 2 इंटू क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 2 यानी कि 2 मतलब 4 मतलब 2, तो 2 प्लस 2 4, 8 पर प्लस 4 12, 12 प्लस 20, हाँ 20, क्योंकि ये 8 आया। इसके लिए देखो, इसके लिए पहला बोल देता हूँ मैं 12 आ गया, सही से बोल रहा हूँ 12 आ गया। हाँ, कैसे 12 आ गया, कुछ तो दिक्कत हो रही है। देखिए, इसके लिए मैं फिर बताता हूँ, 8 आ गया, 8 मतलब 4 स्क्वायर बाई 2, 8। इसके लिए आ गया आपका 4 मतलब 12, इसके लिए भी आया 8, मतलब अब क्या बता सकते हैं आप कि ये 20 आएगा। इसके लिए कैसे आइडिया, हम फिर से क्रॉस वेरीफाई आपके सामने करेंगे, आप सबके सामने, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस 4x, ये किसके लिए, जब आपका मतलब 0 से 4, लेकिन ऐसा तो नहीं आएगा, 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू आ जाएगा। तो 4x जब x प्लस 4 और 0 बैठाएंगे 16, और इधर पे भी 4 और 0, 0 पे 0 ही आ जाएगा, 16 बाई टू 8, 8। तो ऐसे ही है, तो उल्टा ही जाता है। तो वरना अगर ऐसा रहता कि एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस 4x, तो इस पे ये 8 आ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है, ये उल्टा ही आया 4 माइनस 6, क्योंकि ये 0 से 4 तक एक बिहेवियर करेगा, 4 से अगर 5 तक ही जाता, फिर आपका जो मतलब क्या बोल सकते हैं, 20 आंसर है इसका, 20। तो अब नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं और देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है मोस्ट, नहीं और दो क्वेश्चन बचा है। तो इधर पे भी आप वो फॉर्मूला लगा दो, लेकिन उससे पहले इसको रीअरेंज कर दो। 1 प्लस रूट कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ कॉस एक्स बाई साइन एक्स, ठीक है। तब क्या करो, dx तो ऊपर ही, तो इक्वल्स टू dx बाई, ये आई है, सपोज आई इक्वल्स टू दिस, हाँ, तो इम्प्लाइज आई इक्वल्स टू dx बाई रूट साइन एक्स, समझ रहे हो, इधर से इसको मल्टीप्लाई कर दो, रूट कॉस एक्स, नीचे टोटल का साइन एक्स रह गया, तो ऊपर लिख सकते हैं ना इधर, रूट ऑफ साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 6 से पाई बाई 3, पाई बाई 6 से पाई बाई 3, ये मैं पुट करना याद नहीं आता, पाई बाई 6 से पाई बाई 3, साइन एक्स डी एक्स बाई रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। तो हम डायरेक्ट करते हैं, टू आई क्यों, क्योंकि मैं लिखने वाला हूँ ऐसा कि एफ ऑफ पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस क्या एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू, ये पुट कर दो। माना कि एफ ऑफ पाई बाई 3 क्या होता है, मतलब 60 डिग्री, और ये क्या 30 डिग्री या 90 डिग्री, मतलब एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स बेसिकली। तो क्या होता है, साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स साइन एक्स। सिमिलरली रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, इसको हम क्या लिखेंगे, रूट ऑफ कॉस एक्स, जैसे जैसा आप इंटरचेंज करोगे क्या उसको बिठा सकते हो आप, तो पाई बाई 6 से पाई बाई 3, रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स। समझ रहे हो ना, मैंने स्टेप जंप कर दिया बहुत सारे, कि पाई बाई 6 से पाई बाई 3 आया, तो इसको हम मतलब आप बैठा ना इधर पे, तो आप लिख सकते हैं ना, आई इक्वल्स टू, आफ्टर यूजिंग दिस स्टेप, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स का, ठीक है, वो पहले लिखा है। तो इधर पे ए क्या है, इसको अगर ए माने इसको बी माने, तो 5/3 प्लस 5/6 माइनस एक्स, यानी कि 5/3 प्लस 5/6 इज 5/2, you can calculate and check, minus x. So I goes to root of इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ cos x, क्योंकि साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होगा, cos x होगा, dx cos x dx, और नीचे रहेगा रूट cos x प्लस रूट sin x। तो इनको हम लिख सकते हैं ना, रूट sin x प्लस cos x, वही लिखेंगे हम। तो रूट सॉरी, मेरा चार्ज खत्म होने वाला है, मैं फटाफट करके खत्म करता हूँ। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, रूट कॉस एक्स, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, ऊपर भी आ जाएगा ऐसे, रूट कॉस एक्स रूट साइन एक्स, तो ये दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। तो ये मतलब क्या बोल सकते हैं, रफू चक्कर हो जाएगा ना पूरा, रूट साइन एक्स डी एक्स, तो डी एक्स, तो ये पूरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उड़ गया, ठीक है, ये नहीं उड़ रहा है, सॉरी,
एक काम करो, ये नहीं उड़ेगा, ठीक है, अलग से मैं थोड़ा छोटी सी गलती कर दिया। रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, ठीक है, पूरा रफू चेक करो पूरा, ठीक है। तो dx तो है, तो आई कॉस टू क्या हो जाएगा, आई कॉस टू हाफ ऑफ dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, पाई बाई 6 से पाई बाई 3, तो पाई बाई 12 आंसर है इसका, ठीक है, मैच कर लेना। कैसे, हाफ ऑफ dx का इंटीग्रेशन क्या, x हो गया, लिमिट्स क्या थे, पाई बाई 3 पाई बाई 6, तो हाफ ऑफ पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, तो इसका क्या आएगा, 6 इसका डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 2 पाई माइनस पाई, तो पाई बाई 6, और हाफ बाहर तो है, तो पाई बाई 6 हाफ, हाफ इंटू पाई बाई 6, that is nothing but pi by 12. So pi by 12 is the answer of the question, pi by 12, okay। प्रीवियस पेज में चलते हम, इसका लिख दिया हम, इट इज नॉट 24, मैं हटा देता हूँ इसको, इट इज नॉट 24, इट इज क्लियरली लिख देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, 20 है इसका आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, इसमें वो जो प्रॉपर्टी बोले थे वो लगा दीजिए कि ये क्या है, साइन टू द पावर 5x, साइन का कोई ऑड पावर का क्यूब होगा, साइन टू द पावर kx, ठीक है। अगर k इक्वल्स टू 1357 होता है, मतलब ये फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है, ये याद रखना हमेशा। और अगर साइन टू द पावर k को छोड़ के l होता है, lx, या फिर e, और ये o मान सकते हैं, ऑड पावर o इक्वल्स टू 1357 e, जीरो मत मान लेना, थोड़ा o को थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं हम, सपोज साइन रेस टू द पावर 5x लिख सकते हो, 5, तो 5 ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऐसे एंगल के तौर पे यूज करते हैं, 5 छोड़ दीजिए, अब कुछ और ले लीजिए इसको, ऑड, ओ डी डी लिख सकते हैं इसे, ऑड, तो ऑड पावर साइन ऑफ इवन पावर, ये क्या होता है, इवन होता है, इवन मतलब क्या होता है, इवन इक्वल्स टू 0 2 4 ऐसे करके, और इवन 2 ई तक, तो ये इस इक्वल टू ई माइनस 1 तक, मतलब 2e-1 मतलब ये कुछ भी नेचुरल नंबर हो सकता है, मतलब क्या, रियल नंबर नहीं बोल सकते, इंटीजर होता है, z प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसमें देखिए आप, sin टू द पावर 5x क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गई, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गई, सीधा कंप्लीट। तो पाई बाई माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो पाई बाई मतलब पाई बाई 2 इधर a इक्वल्स टू पाई बाई 2 मान सकते हो, तो क्या माइनस पाई बाई 2 मतलब माइनस a से प्लस है, तो ये फंक्शन पे रिड्यूस हो गया ना, माइनस a से प्लस है, एफ एक्स से डी एक्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, माइनस पाई से, माइनस से प्लस है, इसको क्या होता है, जीरो होता है कब, जब ये ऑड है। सिमिलरली साइन एक्स क्या है, साइन टू द पावर 5x क्या है, ऑड है, क्योंकि साइन एक्स ऑड है, इसका ऑड पावर ऑड होगा, तो ये होगा जीरो, बस खत्म, द आंसर इज नथिंग बट जीरो। तो इसके साथ आज आज का क्लास हमारा खत्म होता है, और मैं आप सबको एक ही चीज बोलूंगा, जो जो लास्ट तक लेक्चर को दिखे, कि हो सकता है कि मेरा इस लेक्चर में कुछ कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ कुछ गलती मैंने कर दी है, लेकिन मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, ये मेरा पहला डिजिटल पेन एंड पैड और पेन के साथ क्लास था, तो थोड़ा कंफ्यूजन, थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा, और मैं आशा करता हूँ आप सबको ये पसंद आएगा। सो विद दिस आई कम टू एन एंड, एंड मैं लेक्चर को करता हूँ खत्म।